Unemployment. They promised about 2 crore jobs every year. But in reality, unemployment remains at a 45-year high. They promised houses for all by 2022. Yet another broken promise. In 2015, a promise was made to provide every household a home by 2022. 3 years later, in 2025, as the deadline passed, millions still await promised homes, highlighting delays and unmet expectations. Pattern, if you look at the pattern, big announcement and half execution, or rather zero execution. From infrastructure to education, health to employment, BJP's governance is a pattern of half delivery. Grand promises, incomplete execution, and shifting blame when failures are exposed. This budget is like when I went through the budget, I was here when Madam Finance Minister presented the budget, but later I went through the budget document. Ma'am, all I realized is this budget is like those promises where you promise free meals, but charges exorbitantly for, giving a chair to sit, free water, service. So this budget is like a buffet that promises free meal, but charges exorbitantly for water, service and cutlery. While taxpayers find momentary relief in minor reduction in income tax slabs, the government swiftly offsets these benefits through indirect taxes on fuel, essential commodities, rising road tolls, and higher consumer good prices driven by the increased GST rates. It's evident that these reliefs are nothing more than a mere illusion. Much like the Jio's once free data plans, attracting millions of users at a time, and then they raise the tariff sharply, which now comes monthly at a hefty price tag. The government claims to provide relief, but the reality for the middle class tells a different story. Let me give you another small example, and these are real examples. The government claims of an 80,000 tax benefit for an individual whose income is 12 lakh rupees annually. But it's nothing but a misleading farce. They thumb their chest about relief while simultaneously bleeding the common taxpayer dry through GST and unchecked inflation. A taxpayer in this income bracket, that means someone who is earning 12 lakh rupees annually, spends on essential categories like food, housing, education, healthcare, railway travel, air travel, transport, recreation, and each of these are subjected to steep GST rates under NDA's failed economic policies. The result, if you do a quick calculation, you will see that someone earning 12 lakh rupees ends up inadvertently paying 98,000 in GST. So the illusion of 80,000 tax benefit that BJP is desperately trying to sell, in reality is snatched away from GST alone. That means someone earning 12 lakh rupees is inadvertently having to pay 98,000 rupees on the account of GST alone. Then you have surcharges, you have cess, you have toll tax, you have many other tax, you have STT. ये लोग अभी भी 17वीं शताब्दी में मुगलियाई सोच के साथ ही चल रहे हैं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। मैं तो इसमें एक बात कहूंगा, जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरिया दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। और जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसको ये लोग याद करते हैं। जिसने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसकी कब्र को याद करने का काम ये करते हैं। आप फाइनेंस बिल पे और यही नहीं, इसके अलावा याद करिए इंदिरा गांधी जी का समय 93.5% 93.5% टैक्स लगाने का काम, आप फाइनेंस पे 93.5% टैक्स लगाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने 12 लाख तक जीरो टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं लगाया, टैक्स माफ करने का काम किया। और जहां तक GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात है,
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हमने बना दिया है। संजय मिश्रा जी उसके चेयरमैन है। यही नहीं सर, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे? मैं कहूंगा वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। सर यही नहीं, अगर मैं बात करूं, आज मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कॉपी को लेकर जाते हैं। अरे संविधान को पहले तार तार करने का काम आपने इमरजेंसी के समय किया था, आज मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हो। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के ठेकेदार बनने का काम करते हो। सबके हक की बजाय मुस्लिम परस्ती में मशगूल कांग्रेस, क्या आप मुस्लिम लीग बनाने की बात करते हो? अरे गांधी जी, महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी के देश में आप जिन्ना का मुल्क बनाने की सोच मत रखो। हम जिन्ना का मुल्क कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, ये बात करते थे जॉब क्रिएशन की। आप फाइनेंस बिल्कुल। माननीय सभापति जी, ये जॉब क्रिएशन की बात करते थे। मैं कहना चाहता हूँ, हमने पिछले साल ही 4.6 करोड़ नई जॉब्स, नया रोजगार अगर हुआ है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे प्रयासों कर। स्टार्टअप्स भी 1,60,000 तक हो गए। यही नहीं, कोविड के बाद भी उससे लड़ने, उससे निकालकर हमने मॉरिटोरियम पीरियड भी दिया। 4 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से देश के काम करने वाले व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारी सरकार ने दिया था। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। $709 बिलियन आज एफडीआई हमारे देश में आई है। जहां तक आप किसानों की बात करते हो, 3,60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को देने का काम किया है। हमने किसानों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, जहां 2013-14 में 7,30,000 करोड़ मिला था, आज उससे बढ़ाकर 25,48,000 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। 2014 में 8 एम्स थे, आज 24 एम्स में। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। दुगने से ज्यादा मेडिकल की सीटें हो गई। अगले 5 साल में 75,000 एमबीबीएस की सीटें और जोड़ दी जाएंगी। हम करने जा रहे 10,000 एमबीबीएस की सीटें इस साल करेंगे। यही नहीं, 708 यूनिवर्सिटी थी, आज 1150 यूनिवर्सिटीज हो गई। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,60,000 किलोमीटर हो गए। 74 एयरपोर्ट थे, आज 160। समाप्त करें मेरे सर 5 मिनट और बचे हैं सर मेरे अभी। नहीं। सर मेरा 5:34 तक समय सर मेरा। आप सर यही नहीं सर, ट्रिपल आईटी सर 9 से बढ़कर 25 हो गए। और सर हमने इसमें भी प्रावधान किया है कि अब आईआईटी में 5 आईटी में 6500 सीटों को और बढ़ाने का काम हम इसी साल इसी बजट में